Hey everyone, you are watching Kosal Batchit. Welcome to the another episode of our first series, which is how asking questions rightly matters. Today we have another magnetic personality as our special guest who is very passionate about creating something significant. With his entrepreneurial spirit, he has started and currently building two good initiatives called Jantak Sarvekshan and Jantak So. On the personal note, I may say that his specific interest on our Bharat culture and ethos, which is reflecting on his social posts, personally, I like it very much. So he is nothing but the self-help podcast creator, Mr. Ayush Bajaj, the founder and CEO of Jantak So and Jantak Sarvekshan. So let's welcome Mr. Ayush. So welcome Ayush. Welcome to Kosal Bachit. Thank you so much. Yeah. So how are you actually? Good. Running on a random schedule, doing a lot of appointments, but it's good to be here and speaking something relevant these days. So, thank you for inviting me on the show. Welcome, Master. So basically coming to the point, okay. So in this discussion, we will discuss about how asking rightly matters. Fine. So this is basically for our students, okay, who want to know about the importance of questioning. Fine. Right. So starting from your early childhood, okay. So basically, what's about your childhood? Ki how it was operating, okay, and how it is like that. Please give me a short introduction. Yeah. So, my childhood was a very simple and a good childhood. I was very much into books. I am still into very much into books. So, I had a I had developed a lot of reading habit in my childhood. I Okay. am born and brought up in Chandigarh, and I did my schooling from St. John's High School, where there was a lot of emphasis on reading, library time, and all these things, extracurricular activities. So I think I developed my reading habit there. Apart from that, I did my engineering in big data analytics. So from Chandigarh University only. So I have been born and brought up in Chandigarh, and I have been revolving around Chandigarh for my work also. So that's about my childhood, and I think my reading habit and everything was developed during my school. So this is Okay. all about Okay. my childhood. So means how you were using the questions means how inquisitive level was. What's about that? Because So yeah. yeah. So earlier I didn't use I wasn't conscious enough that I was questioning everything, because I was reading everything and then I used to question it unconsciously. But I read a book, I read a book on the art of questions, and I think it was a sub chapter in any book, in some book. So उसमें मेरे को बताया कि जब हम born होते हैं, the most questions that a child asks, मतलब द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक जो बच्चा पूछता है दिन में, वो 390 है. उसके बाद वो धीरे 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 करके कम होना शुरू हो जाते हैं. स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड होते हैं, वो 395 390 क्वेश्चंस पूछते हैं, और फिर धीरे धीरे करके उनकी क्यूरियोसिटी कम होनी शुरू हो जाती है. सो आई वाज वेरी क्यूरियस कि यार ऐसे क्यों होता है. मतलब हम तो ज्यादा दुनिया देखते हैं जब बड़े होते हैं, तो हमारे क्वेश्चंस तो बढ़ जाने चाहिए. तो फिर मैंने देखा कि बचपन हम से ही तीन चीजों की वजह से. सॉरी फॉर सो बचपन से ही आर्ट ऑफ जो क्वेश्चनिंग बुक है, ओके, सो दैट यू हैव मेंशन्ड नाउ, या ओके, सो बचपन से ही वो मींस या रीडिंग किए थे. या सो एक सब चैप्टर था. मेरे को ना फिक्शन पढ़नी इतनी अच्छी नहीं लगती. आई लाइक टू रीड नॉन फिक्शन ओनली. बीट एनी इतनी, या कोई इंफॉर्मेशनल बुक हो, कोई डॉक्यूमेंट्री हो, मैं ऐसे देख, मूवीज भी ऐसे देखता हूँ. मेरे को दूसरी मूवीज का इतना शौक है नहीं है. तो मैं शुरू से फैक्ट्स पढ़ता था, इंसाइक्लोपीडिया पढ़ता था और ये सब पढ़ता था. तो मुझे इन सब में ज्यादा इंक्लिनेशन थी. तो मैंने यही पढ़ा था कि एक गर्ल चाइल्ड होती है जो 390 क्वेश्चंस पूछती है जब वो मतलब बॉर्न होती है, और उसके बाद उसके धीरे धीरे करके कम होने शुरू हो जाते हैं.
तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि यार कि ऐसे क्यों होता है, क्योंकि बड़े होके तो हम ज्यादा दुनिया देखते हैं, ज्यादा लोगों से मिलते हैं, तो क्वेश्चन हमारे बढ़ने चाहिए। एग्जैक्टली। तो इसमें ये होता है कि हम 3 रीजंस की वजह से मतलब क्वेश्चंस पूछना छोड़ देते हैं। वी थिंक कि हमें सब पता है, तो इस वजह से एक होता है कि हम क्वेश्चनिंग करनी छोड़ देते हैं। सेकेंड, वी स्टॉप बीइंग क्यूरियस अबाउट लाइफ, एज इन की मतलब अब जो चल रहा है मेरी लाइफ में, मैं हार मान के कहता हूँ कि अब ये जो चल रहा है चलते रहने दो, इसका कोई वो नहीं है। और तीसरा यह है कि हम इतने अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं लाइफ में कि हमें लगता है कि एक हमें स्टेबल सा करियर मिल गया या पाथ मिल गया, तो अब हमें मतलब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है या क्यूरियस होने की जरूरत नहीं है, एज इन कोई ब्रेक थ्रू अचीव करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इनिशियली ये होता है कि हमें कोई ब्रेक थ्रू अचीव करना होता है, या हम जनरली बड़े क्यूरियस होते हैं, तो इसलिए हम क्वेश्चंस पूछते हैं, बट वो धीरे 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 करके खत्म हो जाता है। और एक और कोट था, मैंने एल्बर्ट आइंस्टाइन का पढ़ा था कि अगर उनसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा था कि क्वेश्चंस की वैल्यू क्या है, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, तो उन्होंने कहा कि मतलब इफ यू गिव मी 1 hour टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, I would take 50 minutes at least to ask the right question to myself, and then 10 minutes to answer the right answer. Yeah, yeah, great, great. So basically, as per your observation कि 3 stages होते हैं, fine, okay. First of all, the main reason कि वो बंद कर देते हैं कि gradually जो हमारा curiosity का curve होता है ना, basically, okay. अगर हम toddlerhood के start करेंगे, तो ये gradually down हो रहा है, decay हो रहा है, isn't it? Okay. So the curiosity curve का main decay का main reason ये होता है कि उनके अंदर किस एंगल पे भी जो हम बोलते हैं ना कि फियर क्रिएट होता है, isn't it? Okay. So कि बीइंग जॉर्ज टाइप की फियर जनरेट होता है, फाइन। ओके, सो फ्रॉम चाइल्डहुड जब भी मींस ग्रेजुअली ग्रोथ हुआ आपकी, ओके, तो जब भी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हुए, तो आपकी थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताइए कि आफ्टर बिजनेस एजुकेशन, सो व्हाट यू वर डूइंग एंड हाउ वाज द स्पेक्ट्रम? तो इसमें भी मैं क्वेश्चनिंग वाली चीज लाऊंगा। जब मैं कॉलेज में था तो आई वॉज डूइंग वेरी वेल इन माई स्टडीज, आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स इन माई क्लास। तो पर फिर भी मुझे ऐसे फुलफिल्ड सा नहीं फील हो रहा था कॉलेज में, कंटेंट सा नहीं फील हो रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इंडस्ट्री रेडी नहीं हो रहा हूँ। ओके, तो ताकि सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ और कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करना शुरू किया इन माई सेकेंड ईयर। तो मैंने 2 दिन इंटर्नशिप्स करी, उसके बाद आई स्टम्बल्ड अपॉन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आईसेक। उसमें आई वाज इंडक्टेड एज द टीम मेंबर, एंड देन आई वाज मेड द टीम लीडर, एंड देन आई वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग वाइस प्रेसिडेंट इन माय टीम। मतलब मेरा डिपार्टमेंट एशिया में बेस्ट था। okay, that is in intermediate course, your +2, yeah. नो नो, ये कॉलेज के सेकेंड ईयर में। ओके, कॉलेज की मींस क्या, ग्रेजुएशन की या इंटरमीडिएट की? ग्रेजुएशन करी, पर साथ साथ मैं काम कर रहा था। कॉलेज बस अटेंडेंस एक दिन चले जाता था, ओके, और बाकी फिर साथ साथ अपना काम करता था। नाइस नाइस। ओके, सो तो फिर हाँ, बोलिए प्लीज। तो फिर ये करी, उसके बाद मेरे को एक फुल टाइम जॉब मिली ट्रैवल एजेंसी में। तो आई यूज्ड टू टेक किड्स टू नासा, शो देम यूएसए में जो भी एजुकेशनल एरियाज हैं, जैसे हार्वर्ड होगी, मतलब नासा का वो जो एरिया है वो दिखा दिया। तो ये सब किया। उसके बाद आई थॉट कि यार आई एम डूइंग वेरी वेल फॉर ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, आई डिड वेरी वेल, आई एम गेटिंग पेड आल्सो वेरी वेल, सो लेट मी डू समथिंग ऑफ माय ओन। सो आई ओपनड अ पॉलिटिकल एजेंसी ऑफ माय ओन, जिसमें मैं सर्विस करता था पॉलिटिशियंस के और उनके मीडिया कैंपेन्स बनाता हूँ। तो ये करा मैंने, और उसके बाद आई हैव अ टॉक शो, जनतक शो के नाम से, in which I call a lot of good people on the show. Like I recently had the former finance minister of Punjab. Yeah, that's in that. Yeah. So these type of people I call, and self-help basically show. So I'm currently doing these 2 things in my life. So Ayush, actually, apart from your corporate job, okay, you were doing something, and that was a different scenario. So why you are thinking कि actually कुछ मेरा start करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो इसका vision में मतलब क्या था specifically? एंड उस टाइम क्या क्वेश्चन एक्चुअली किए थे तुम, मींस किस टाइप के क्वेश्चन था एक्चुअली?
मैं पर्टिकुलरली वो की तो क्वेश्चन मुझे ट्रेस करना चाह रहा हूँ कि वो की क्वेश्चन क्या था, जो क्वेश्चन आपको लीड किया था कि एक्चुअली बेसिकली ये चीज को छोड़कर मुझे कुछ करना है अभी। ओके, तो वो लीडिंग क्वेश्चन क्या था स्पेसिफिकली? लीडिंग क्वेश्चन यही था कि व्हाट इफ आई बी माय ओन बॉस एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ओके, तो ये क्वेश्चन था कि मतलब अगर मैं अपना कुछ करता हूँ और अच्छा करता हूँ तो मेरे को कहीं और काम करने की जरूरत नहीं है और मेरा बड़ा फ्लेक्सिबल सा रूटीन हो जाएगा। या तो ये था ओके ओके। सो या ये तो सारे की चीजें हैं। तो आयुष स्पेसिफिकली आपके पर्सनल व्यू से क्वेश्चनिंग को कैसे देखते हैं? मीन्स क्वेश्चनिंग एक बचपन से एक बच्चे की कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे की लाइफ में, कैसे आप कैसे देखते हैं? मैं ऐसे देखता हूँ कि अगर तुम अच्छे क्वेश्चंस पूछोगे अपने आप से तो तुम्हें अपने आप के बारे में और पता चलेगा। एज इन अगर आप अपने आप से काफी क्वेश्चनिंग करते रहोगे तो अपनी रियल नेचर के बारे में पता चलेगा, अपने पैशन के बारे में पता चलेगा, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में पता चलेगा। ये पता चलेगा कि तुम्हें किस तरह के लोगों से उठना बैठना है, किन लोगों को अवॉइड करना है। अपनी बेसिकली नेचर के बारे में जब पता चल जाए ना तो फिर मेरे ख्याल से कोई भी अनस्टॉपेबल हो जाता है लाइफ में। और बच्चों का तो ये है कि मतलब शुरू से ही मैं तो कहता हूँ कि मतलब रीडिंग हैबिट और क्वेश्चनिंग तो फिर मेरे हिसाब से आ ही जाती है। बट ये है कि जैसे आजकल फोन वगैरह का टाइम आ गया तो इतना मेरे ख्याल से थोड़ा उसको रिस्ट्रिक्ट करके और रीडिंग हैबिट वगैरह डालनी चाहिए बच्चों को। उससे फिर अपने आप ही क्वेश्चनिंग की हैबिट और बढ़ती है। एग्जैक्टली। जितना तुम पढ़ोगे उतना तुम्हें ये लगता है कि यार मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मतलब कितनी सारी चीजें हैं जो मेरे को पता ही नहीं है। या तो ये लग... सो द इम्पोर्टेंट इज दैट कि क्वेश्चनिंग बेसिकली सेल्फ रियलाइजेशन को इंस्पायर करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन को एनहांस करते हैं। ओके, एंड विद बिल्कुल हेल्प ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन की आवर कॉन्शियसनेस, ओके, इट इंक्रीजेस, इजंट इट? ओके, एंड दैट हेल्प्स अस इन मेनी वेज। ओके, सो आपको क्या लगता है, आपको ये सही लगता है कि नहीं जो मैंने बोला? एग्जैक्टली, आई एग्री ऑन दैट। ओके, बिकॉज क्वेश्चनिंग क्या होता है ना, सेल्फ रियलाइजेशन को ऑफ करता है हमारा। ओके, एंड सेल्फ रियलाइजेशन ही एक बच्चे को कॉन्शियस बनाता है। ओके, जो कॉन्शियसनेस, एंड यू नो कॉन्शियसनेस इज मस्ट। ओके, फाइन। सो आयुष स्पेसिफिकली अगर मैं हम ये डिस्कस करेंगे कि बच्चे की एक्चुअली इंक्लूसिवनेस का बैरियर क्या क्या होता है स्पेसिफिकली जब भी वो ग्रेड में जाते हैं। ओके, फाइन, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ओके, उनकी ग्रेड इंक्रीज हो रहा है, उनकी जो हम लिटरली बोलते हैं कि इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट इंक्रीज हो रहा है। बट द थिंग इज दैट उनके अंदर क्यूरियोसिटी क्यों डाउन हो रहा है? व्हाट डू थिंक? उनके अंदर क्यूरोसिटी इस वजह से डाउन होती है क्योंकि उनकी पेरेंटिंग इस वजह से होती है। अगर कोई बच्चा मतलब किसी पेरेंट से, कल मैं जैसे जॉगिंग करने गया था एक पार्क में, तो एक बच्चा काफी क्वेश्चंस पूछ रहा था अपने पापा से, पर उसके पापा ने जवाब दिया कि यार अभी मेरा दिमाग सही नहीं चल रहा, अभी नहीं पूछ, मेरे को फिर पूछियो। तो फिर ये होता है कि इससे फिर बच्चा पूछना छोड़ देता है और धीरे धीरे करके अगर ऐसे दोस्त वगैरह मिल जाए या आसपास अगर बाय चांस कोई ऐसी टीचर मिल जाए तुम्हें क्लास में, तो फिर इस वजह से वो हो जाता है, मतलब क्वेश्चनिंग का लेवल डाउन हो जाता है। प्लस मेरे को ये लगता है कि मतलब जो ये फोन या डिजिटल एरिना आ गया है तो इस वजह से भी क्वेश्चनिंग का वो सारा डाउन हो जाता है क्योंकि जो भी तुम्हें मतलब चाहिए होता है उससे डिस्ट्रैक्ट कर देती है ये जो इंटरनेट की दुनिया है। या तो मेरे को ये लगता है कि इस वजह से क्वेश्चनिंग का वो डाउन हुआ, एग्जैक्टली। मतलब होता है बच्चों को। या एक विजडम भी है कि वो बताते हैं कि एक्चुअली all computers are useless because they are the provider of answers, they're not Yeah. provider of questions, fine। and ये जो बेसिक रीजन है कि जो बच्चे को फील होता है कि ये पर्सन मुझे आंसर देगा, फाइन, जैसे पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो वो आंसर देने वाले जो पर्सन है वो अवॉइड करते हैं क्वेश्चन को, isn't it? ये एक रीजन है। अनदर रीजन आपको ये फील होता है कि एक्चुअली स्टूडेंट्स फियर करते हैं टू बीइंग जॉर्ज्ड। ओके, कि मेरा क्वेश्चन के क्वालिटी अगर अच्छे नहीं होगा तो वो क्या फील करेंगे। ओके, अगर मेरा क्वेश्चन का लेवल उतना स्पेसिफिक होना, क्योंकि मैं बच्चे को मीन्स देख रहा हूँ, ऑब्जर्व किया हूँ कि एक्चुअली बच्चे के माइंडसेट में ये होता है कि एक्चुअली मेरा क्वेश्चन का क्वालिटी अच्छा होगा या नहीं होगा। मीन्स जो क्वालिटी वर्ड है ना वो ज्यादा ओवररेटेड है। जी फाइन, ओके, तो आपको क्या फील होता है हाँ।
इसके मेरे बारे हिसाब से तो कोई, मेरे को ये लगता है कि स्टूपिड क्वेश्चन भी पूछ लेना चाहिए। कई बार ये होता है कि अगर कोई स्टूपिड क्वेश्चन भी है, में? तो नाइस। अगर वो मैंने पूछ लिया तो मेरे काफी हायर लेवल के क्वेश्चंस ठीक हो जाते, मतलब समझ लग जाते हैं। और मैं तो वैसे भी कोई क्वेश्चन को ऐसे स्टूपिड या अच्छा नहीं मानता। जो मन में आया मतलब वो पूछ लिया, या खुद ही पढ़ ली उसके बारे में, तो मेरे हिसाब से मतलब पूछ लेना चाहिए। इतना सोचना नहीं चाहिए किसी के बारे में कि मैं क्या पूछ रहा हूँ क्या नहीं पूछ रहा। मैं तो एग्जैक्टली। मतलब मेरा एक इंसिडेंट हुआ था कि हमारे कोई नई एचओडी लगे थे ओके। यूनिवर्सिटी में। तो वो लास्ट सेमेस्टर था मेरे हिसाब से। तो उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन दी, और मतलब उन्होंने उनमें उसमें कहा कि मेरे 2 बारी मैंने एमबीए करी है मार्केटिंग में। ओके। तो मतलब फिर उनका सेशन खत्म हुआ और एंड में उन्होंने पूछा कि तुम्हें कुछ डाउट है, तो मतलब बच्चों से। तो मैंने हाथ खड़ा करा और मैंने पूछा कि सर आपने 2 बारी एमबीए मार्केटिंग में ही क्यों करी है, मतलब कुछ और भी तो हो सकता था, ये तो रिडंडेंट होगी। तो उसमें वो थोड़ा वो हो गए, ऑफेंड हो गए। पर मेरा तो सच्ची जनरली मैं बड़ा क्यूरियस था कि क्यों करी है। तो इतना नहीं सोचना चाहिए। बाकी लोग मेरे पे हंसे, पर ऐसे कुछ वो नहीं है कि मतलब मैं सोचता रहा कि ये क्या सोचेंगे क्या नहीं। पर पूछ लेने चाहिए स्टूपिड क्वेश्चन, जैसे कुछ वो नहीं है। Yeah, nice, nice. Actually, the same I have experienced too. Okay, because inside the classroom, okay, बच्चे actually बचपन से ही children are very curious. Okay, and they have strong Yeah. desire to know something. Fine. Okay, so मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है कि स्कूल लाइफ में, okay, जब भी हम अलजेब्रा की क्लास चल रहा था, okay, so my question was कि actually why algebra is named so. Fine. Okay. So the reply from the teacher was ki actually why your name is Santanu. Okay. So Nice. that there is a one type of cross questioning. Okay, which Yeah. degrades the confidence of a children. Fine. Obviously, that the student will sit down, isn't it? Okay. So there is a kind of barrier actually. Various persons don't want to face the question. Okay. डोंट वांट टू, उनको ये फील होता है कि एक्चुअली बेसिकली आपको ये फील होता है कि एक्चुअली टीचर या जो भी पर्सन अवॉइड करते हैं, फाइन, ओके, उनका एक्चुअली ये फीलिंग कि अगर मैं आंसर नहीं दे पाऊँ, फाइन, अगर मैं आंसर नहीं कर पाऊँ तो शायद वो चिल्ड्रन मुझे मे बी फुलिश फील करेगा या कुछ मेरा जो वैल्यू सिस्टम है वो डिग्रेड होगा। तो उनके जो माइंड पे ऐसे कुछ फियर होता है क्या? आपको क्या फील होता है बेसिकली? हम्म, मीन्स उनके जो एवॉइड fear- एवॉइड का मेन रीजन क्या होता है स्पेसिफिकली? आप एक बार रिपीट करोगे, आपकी वॉइस ब्रेक हुई है। ओके, ओके, ओके। सो मैं पूछ रहा हूँ कि एक्चुअली अभी क्लियर है ना आयुष? हाँ जी, हाँ जी। ओके। सो आई एम आस्किंग दैट एक्चुअली जो टीचर अवॉइड करते हैं ना चिल्ड्रन को कि एक्चुअली टू हम्म, टू बी आस्क्ड, ओके, सो उनकी जो अवॉइडेंस का मेन रीजन क्या हो सकता है? फाइन, ओके, उनके माइंड पे ये फियर नहीं है कि अगर मैं आंसर नहीं कर पाऊँ, फाइन, अगर मैं प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाऊँ तो maybe the children will feel that if the teacher is foolish या teacher is means not know don't know at that point. Okay, so ऐसे ऐसे कुछ fear होता है क्या माइंड पे? मीन्स आई आप थिंक ऐसे कुछ फियर भी होता क्वेश्चन को है एक। अवॉइड किया है क्या लाइफ में? ऐसे कुछ क्वेश्चन को अवॉइड किया है कि जो आपकी आपकी लाइफ में ऐसे कुछ हुआ है क्या? मैंने ऐसे तो मतलब मैं बड़ा ओपन आदमी हूँ, मैं ऐसे कोई क्वेश्चंस को अवॉइड नहीं करता। अगर मेरे को कुछ नहीं पता तो मैं बोल दूंगा कि मुझे नहीं पता। अगर आप भी मेरे से कुछ नाइस, पूछोगे नाइस, नाइस। तो मैं बोल देता हूँ कि मुझे नहीं पता। पर जनरली 2 रीजंस होते हैं इसको अवॉइड करने के। कि एक तो लोगों में ईगो बहुत ज्यादा होती है कि उन्हें लगता है कि मैं इसको क्यों आंसर करूं। दूसरा ये होता है कि कहीं ये पूछते पूछते कुछ ऐसे ना पूछ ले कि मेरे को ही ना पता हो। तो मेरे को ऐसे लगता है कि ये 2 चीजें होती हैं जो। एग्जैक्टली। सो वो लेवल की यहाँ पे आता है ना कि इंटेलेक्चुअल मीन्स कॉरेज के साथ साथ ओके इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी भी होना चाहिए, फाइन, कि इतना लेवल की ह्यूमिलिटी होना चाहिए कि यस अगर मैं मुझको आता है तो यस आई विल टेल दैट, अगर नहीं आता है तो आई विल एडमिट दैट यस आई विल फाइंड, ओके,
फाइन। ये जो आई विल फाइंड का एटीट्यूड होना चाहिए, isn't it? ओके, सो स्टूडेंट के बारे में अगर हम बात करें, ओके, तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन की ग्रेजुअली जो डाउन हो रहा है, ओके, उसकी तो एक रीजन ये होता है कि एक्चुअली जो आंसर देगा वो अवॉइड करते हैं, फाइन। अनदर जो रीजन हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली उनको फियर है कि एक्चुअली मेरा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वालिटी में अगर उनकी फियर है, ओके। एंड और एक रीजन क्या हो सकता है, जो रीजन के मीन्स वो अवॉइड करना चाहिए? आई थिंक मतलब बच्चे आजकल, या मतलब जो आजकल की जनरेशन है वो इतनी पढ़ती नहीं है, या इतनी मतलब इनकी रीडिंग हैबिट इतनी नहीं है। और जनरली अगर आप इंटरनेट पे आंसर्स देखने जाओ तो आप मेरे ख्याल से आंसर से पहले कोई डिस्ट्रैक्शन पे क्लिक कर देते हो, जिससे कि आपकी क्यूरियोसिटी ही मर जाती है। एज इन मतलब अगर मैं भी कुछ अपने फोन पे देखने जाऊं तो मेरा भी होता है कि लिंक्डइन खोल लो, ट्विटर खोल लो, यूट्यूब खोल लो। तो मेरे ख्याल से ये चीजें भी काफी क्यूरियोसिटी डाउन कर रही हैं। माना कि इन चीजों का फायदा बहुत है और मतलब इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी बहुत है, पर जो जनरली सोशल मीडिया पे पुश करी जाती हैं वो डांसिंग वाली रील्स होती हैं, ये सब होती हैं, तो मेरे ख्याल से कि उस वजह से थोड़ा क्यूरियोसिटी लेवल डाउन चले जाता है। प्लस ये होता है कि ज्यादा होता है, सॉरी, डिस्ट्रैक्शन मींस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत बहुत ज्यादा। ओके। तो हाउ टू अवॉइड दैट डिस्ट्रैक्शन मींस ऐसा 3 टिप्स क्या है कि आपके हिसाब से, ओके, क्योंकि ज्यादा अभी इंफॉर्मेशन की एज है, फाइन, स्टूडेंट्स हैव टू बी इन्वॉल्वड विद द इंफॉर्मेशन, फाइन, ओके। सो एंड अभी जो मेन रीजन जो आप पॉइंट आउट किए कि एक्चुअली बच्चे को अगर हमारे टाइम पे, फाइन, एंड हमारा प्रीवियस टाइम पे, ओके, जब भी हमको क्यूरियस आता है ना, बिफोर जो प्री गूगल एरा हम बोलते हैं, ओके, प्री गूगल एरा पे क्या होता था कि हम जब भी कुछ भी क्यूरियस आता है, ओके, जब भी हमको कुछ डिजायर आता है तो हम जब जाकर पूछते हैं टीचर को, isn't it? ओके, वी वर आस्किंग, बट अभी क्या है, विद इन 2 सेकेंड यू कैन नो द पॉसिबल आंसर्स, isn't it? Okay, just by putting in Google. So though, because you know what, biologically ये जो क्यूरियस सिस्टम है ना, क्यूरियोसिटी का, ओके, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, फाइन। जब भी एक बच्चा क्यूरियस होता है, ओके, उनके अंदर डोपामाइन सीक्रेट होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर, फाइन। तो हम क्या करते हैं, वो टाइमलाइन को ही अलाउ नहीं करते, ज्यादा डोपामाइन को सीक्रेट करना ही नहीं देते, फाइन। सो उनके जो इंक्लूसिटिवनेस है ना, वो डाउन होता है, फाइन, ओके। अभी मीन्स जो अब आप जानते हैं ना, ये एक कॉमन साइकोलॉजी की, हमको जो चीजें नीडेड होता है, ओके, हमारे माइंड पे क्यूरियोसिटी होता है कि वो चीजें नीडेड है, वो चीज हमको जानना है, फाइन। तो ये बहुत टेक्निकली है कि हमारे माइंड पे रिफ्लेक्स एक्शन चल रहा है, फाइन, एक पाथवे चल रहा है डोपामाइन की, फाइन, जो हमारे ब्रेन को एक्टिवेट रखते हैं, फाइन। तो जब भी एक बच्चा गूगल करते हैं कुछ भी क्वेश्चन को, तो उनके डोपामाइन सिक्रेशन की जो टाइमलाइन होता है वो ब्रेक होता है, क्लियर, ओके। सो ये जो पाथवे ब्रेक हो रहा है, ओके, एक बच्चा कुछ भी क्वेश्चन कर रहा है, ओके, एंड वो क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे, उनके हिसाब से डिस्ट्रैक्शन एराइज हो रहा है, ओके। वो एक्चुअली इंटरनेट पे गया था कि क्वेश्चन करने के लिए, बट डिस्ट्रैक्शन सो मेनी आ रहे। तो ये डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें, एंड ये स्पेसिफिकली इंक्लूसिवनेस को कैसे इंक्रीज करें, मींस to avoid the googling and to keep some time to google, okay, so ऐसा क्या एक बच्चा कर सकता है आपके हिसाब से? आई थिंक इसमें जो आपने पहले बोला कि हम साथ के साथ गूगल कर लेते हैं, कई मैंने बिहेवियर पैटर्न्स ये भी देखे हैं कि अगर मेरे अंदर किसी चीज की क्यूरियोसिटी हुई, अब मुझे पता है कि मेरे पास इंटरनेट है, तो मैं कहता हूँ कि मैं शाम को देख लूंगा या कल देख लूंगा या 2 दिन बाद देख लूंगा, तो फिर वो हम देख नहीं पाते, मतलब इतनी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, फिर हम भूल जाते हैं उस क्यूरियोसिटी के बारे में। या फिर ये होता है कि हम गूगल करते हैं, 1-2 लाइन पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो अब तो हमें पता चल ही गया, पर ऐसा नहीं होता। मतलब हमें अच्छे से रीडिंग देनी चाहिए उसको कि प्रॉपर क्या मेथड है क्या नहीं है। तो एक तो आपने पूछा कि अब डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसमें यही है कि तुम ये तो मतलब तुम्हारी कॉन्शियस एफर्ट है, इसमें कोई शॉर्टकट। इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, ओके। फर्स्ट है एक्चुअली जो बच्चे गूगलिंग कर देते हैं, ओके, इजीली विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, जस्ट गूगल देम, ओके। एंड आल्सो यू हैव एडेड वन पॉइंट आल्सो कि बच्चे जब भी कुछ गूगल करते हैं एंड देखते हैं
कि ये इन्फॉर्मेशन है, तो उनको उनको ह्यूमिलिटी ही नहीं होता है कि एक्चुअली यही सब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इज इट? और भी जानना है, उनके माइंड पे ये भी डिस्ट्रक्शन आ रहा है, फाइन, जो बाइसिंग बाइसिंग क्रिएट होता है, कॉग्निटिव बाइसिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कि एक्चुअली अबाउट दैट कि बच्चे क्यों ज्यादातर गूगल करते हैं एंड कैसे उसको अवॉइड करना चाहिए। गूगल को अवॉइड नहीं करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ना चाहिए, मतलब सिर्फ एक दो लाइनें पढ़ के नहीं छोड़ देना चाहिए, मतलब काफी सारी वेबसाइट्स विजिट करनी चाहिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखो उसके रिगार्डिंग। तो यही है कि अच्छे से पढ़ो उसको, अगर कोई चीज आई है तो उसके फंडामेंटल्स क्लियर कर लो, फिर ताकि मतलब उससे और भी क्यूरियोसिटी बढ़ सकती है और उससे और भी टॉपिक्स क्लियर हो सकते हैं। और डिस्ट्रैक्शन का ये है कि मतलब डिस्ट्रैक्शन ऐसे ही कॉन्शियसली ही अवॉइड हो सकती है अगर तुम्हारे पास विल पावर हो। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं कहूँ कि ऐसे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड हो जाए, ये तुम्हें खुद ही कॉन्शियस होना पड़ेगा कि दिस इज नॉट गुड फॉर माई टाइम, एंड अभी मेरे लिए टाइम बहुत प्रेशियस है, तो मेरे को इन सब चीजों में कम पढ़ना है। मतलब ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही ना करो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता है, पर ये है कि ज्यादा भी ये ना हो ना 7-7 घंटे बंदा यूट्यूब वीडियोस नेटफ्लिक्स और ये सब भी लगाओ। तो मेरे हिसाब से यही आंसर है डिस्ट्रैक्शंस का। ओके ओके, सो आयुष एक्चुअली वन पॉइंट इज वर्ड कि जो ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं, फाइन, हमारे कंट्री पे, फाइन, ये जो कंट्री हमारे सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम, ओके, ये कम्प्लीटली डाइवर्सिफाइड, फाइन। कंट्री में ऐसे बच्चे हैं जो ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, फाइन, ऐसे ऐसे थिंकिंग माइंडसेट है। बट ऐसे भी बच्चे हैं जो 10th क्लास बच्चे हैं, बट उनको पता नहीं है कि 1 मिनट के कितने सेकंड होते हैं, ऐसे भी बच्चे। ओके, इससे ये स्ट्रेंज फील होता है, बट ये होता है, फाइन। बट ये जो गैप है ना, ये स्पेक्ट्रम की जो गैप है, ओके, ये गैप में इंक्यूजेटिवनेस को कल्चर करना, क्लासरूम के इंक्यूजेटिवनेस को कल्चर करना, क्वेश्चन आस्किंग जो हैबिट को बिल्ड करना, यहाँ पे दिक्कत होता है कि जो नेक्स्ट ग्रेड की, नेक्स्ट लेवल के बच्चे होते हैं, नेक्स्ट लेवल की क्या होता है कि उनको केयर ही नहीं है कि क्वेश्चन क्यों करना, मुझे क्यों पूछना है, फाइन, एंड उनका कोई अटेंशन ही नहीं होता है, फाइन। तो वो बच्चे के लिए आपकी क्या मीन्स सजेशन रहेगा कि एक्चुअली कैसे स्टार्ट करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्यूजेटिवनेस को कल्चर करने की बिगिनिंग कैसे होना चाहिए? अगर किस बच्चे को कुछ भी वो नहीं पूछते, कुछ भी वो मीन्स माइंडसेट ही नहीं रखते कुछ भी करने के लिए, तो उनकी अप्रोच कैसा होना चाहिए? फिर उनको मेरे हिसाब से तो उसी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए जो उन्हें चीजें पसंद है। सपोज मैं एक बच्चा हूँ कि मेरे को सिर्फ गेम्स वगैरह पसंद है और पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ओके, तो मैं अपने जो गेम्स खेलता हूँ उसके बारे में ही सही क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ कि मैं लेवल अप कैसे करूँ, पढ़ूं मतलब उसके बारे में, और उसके पीछे की प्रोग्रामिंग किसने बनी है, किसने बनाई है, उसकी क्या जर्नी रही है, उसने और कौन सी गेम्स बनाई है, ताकि मेरे को और भी पता चले। तो धीरे धीरे करके जब आपको ये क्वेश्चनिंग की आदत पड़ जाएगी, तो आप मेरे ख्याल से दूसरे एरियाज में भी क्वेश्चन करोगे अपने आप को। पर ये है कि पहले उसमें क्वेश्चन करो कि जो चीज आपको पसंद है कि वो किसने बनाई है किसने नहीं। तो आपको शायद पता होगा, एक वो है अल्कोहल की मेजर को कहते हैं पटियाला पैक बना दो, आपको पता है? तो मैंने अभी रिसेंटली एक वेडिंग अटेंड करी जिसमें सारे ही पटियाला पैक पी रहे थे। मैं पीता नहीं हूँ, पर मैं मतलब देख रहा था, तो मैंने सोचा कि यार स्मॉल पैक कहते हैं, लार्ज कहते हैं, पर ये पटियाला पैक क्यों कहते हैं? तो फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा और वो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं लिंक्डइन पे पोस्ट भी डालूंगा उसके रिगार्डिंग। तो मैंने एक बुक से पढ़ा कि महाराजा भूपिंदर सिंह जी थे पटियाला से। तो ब्रिटिशर्स की टीम आई थी उनकी टीम के साथ क्रिकेट खेलने, पर जो यहाँ की टीम थी वो इतनी मेरे ख्याल से स्किल नहीं था कि वो ब्रिटिशर्स को हरा दे। तो उन्होंने क्या करा कि वैसे लार्ज पे कितना होता है, तो उन्होंने इसका डबल करके ब्रिटिशर्स को पिलाया एक रात पहले। तो उन्होंने पिलाया, तो अगले दिन वो खेल नहीं पाए उस लेवल के, और फिर जो पटियाला वाली टीम है वो जीत गई। तो यहाँ से फिर पटियाला पैक का means I have known that from you for the first time. Okay,
because see, means whenever you have listened something, ki this is patella pack, like that, okay, so something being curious on your mind कि actually पटेला क्यों है, उसको पर्टिकुलरली लार्ज पैक, शॉर्ट मिनी पैक ऐसे बोलते हैं, बट ये पटेला पैक क्यों है? सो दैट्स द फाउंडेशन ऑफ क्यूरियोसिटी, isn't it? क्योंकि हमारे माइंड पे क्वेश्चन आना चाहिए कि हम जो बैरियर कर देते हैं ना कि ये ब्रेक है, ब्रेक कर देते हैं स्पेसिफिकली इसमें, ओके, कि हमको क्वेश्चन नहीं पूछना है, ये नहीं करना है, फाइन। तो बेसिकली आपके हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल सजेशन ये देना चाहिए कि बच्चे को जो भी फील्ड में इंटरेस्ट है, वो गेमिंग हो या जो भी चीजें, इंटरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि बच्चे ऐसे नहीं है कि क्लासरूम में ही नहीं क्वेश्चन पूछते, वो तो बाहर में मीन्स बियॉन्ड क्लासरूम तो वो क्वेश्चन पूछते हैं, isn't it? कि ये क्यों है, वो क्यों है, वो पूछते हैं बच्चे, अदर फील्ड में क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनके हिसाब से क्वेश्चनिंग होना चाहिए, फाइन। सो दैट्स द ग्रेट सजेशन एक्चुअली। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्चुअली आयुष की क्वेश्चनिंग की जो क्वालिटी होता है, फाइन, वो तो ओवररेटेड होता है, फाइन। बच्चे के माइंडसेट में ये होता है कि थिंकिंग करना एक ग्रेट थिंकर की माइंडसेट है, ओके, साइंटिफिक थिंकिंग एक कुछ लोग ही कर पाएंगे, फाइन, सब नहीं कर पाएंगे, उनके माइंडसेट में ऐसा एक मीथ है, फाइन, कि ग्रेट थिंकिंग ओनली कुछ पर्सन ही कर पाएंगे, फाइन। तो क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं करते, क्वालिटी एक चीज जो ओवररेटेड होता है, फाइन। बट आई थिंक ऐसा भी एक पर्सपेक्टिव है, ओके, कि जैसे क्वेश्चनिंग की क्वालिटी मैटर करता है, अगर हम राइट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, फाइन, वो क्वेश्चन हमारा बैरियर हो जाता है, फाइन, वो क्वेश्चन हमारा जो स्टॉपनेस हो जाता है, फाइन। तो आपको क्या फील होता है कि एक्चुअली स्लोली बाय स्लोली स्टूडेंट को ट्रेन करना चाहिए कि एक्चुअली हाउ टू आस्क क्वेश्चन राइटली, मींस जो राइटली वर्ड होता है ना क्वेश्चनिंग के बाद, हाउ टू आस्क क्वेश्चन राइटली, ओके, तो ये राइटली वर्ड के हिसाब, आपके हिसाब से क्या है, मींस आप कैसे सोच रहे हो कि एक्चुअली बच्चे को कैसे ट्रेन करना चाहिए कि राइट क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, राइट चीज है, ये जो डिजाइन थिंकिंग चीज कैसे इंप्लीमेंट होगा? शुरू में तो मैं वही मानता हूँ कि पहले कुछ भी क्वेश्चनिंग हो उसको रोकना नहीं चाहिए। उसके बाद ये होता है कि तुम्हें ये सोचना होता है कि तुम क्या सोल्यूशन इमर्ज करवाना चाहते हो इस प्रॉब्लम में से, तो उस हिसाब से क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस अपने बदलते रहो। तो ये होता है कि मेरे हिसाब से कि बच्चों को शुरू में तो जैसे मैंने कहा कि कुछ भी क्वेश्चन होने चाहिए, उसके बाद ये होता है कि धीरे धीरे करके जब आप इतनी क्वेश्चनिंग की आदत डाल लेते हो तो खुद ही ये मेरे ख्याल से डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है कि am I asking the right question to myself or not, क्योंकि इसी से ही मेरा सोल्यूशन इमर्ज होगा। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मेरे को 1 घंटा मिले कोई आंसर ढूंढने का तो मैं 50 मिनट्स राइट क्वेश्चन ढूंढने पे लगाऊंगा और फिर 10 मिनट में आंसर निकल सकता है। तो ये है मेरे साथ। ऐसा भी विजडम है आयुष के, एक्चुअली आइंस्टाइन के नाम पे ही वो ये विजडम है, फाइन। वो बोलते हैं कि एक्चुअली आई डोंट नो कि वेदर ही सेड और नॉट, फाइन, उनके माइंड पे ये जो विजडम की थीम ये था कि एक्चुअली अगर एक बच्चे को क्वेश्चन मींस एक आंसर नहीं दे पाते वो, ओके, एक बच्चा अगर आंसर नहीं दे पाते तो मेक श्योर दैट ही इज नॉट वेल नोन अबाउट द प्रॉब्लम, he don't know the problem very well, that's the clear cut idea, fine। so ये विजडम के साथ हम ये जो बातचीत को खत्म करेंगे, ओके। सो द थिंग इज दैट बच्चे को माइंडसेट में फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइंडसेट रखना चाहिए कि क्वेश्चन की आंसर डिपेंडेंट जो माइंडसेट होता है, एटीट्यूड होता है कि मैं क्वेश्चन पूछूं तो मुझे आंसर मिलना चाहिए, ओके, ये माइंडसेट स्पेसिफिकली नहीं रहना चाहिए, because you have to the beauty in question actually within the question, okay, क्योंकि टोडलरहुड में बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं आंसर के लिए नहीं, वो ब्यूटी क्वेश्चन में ही होता है, isn't it? okay, तो हमारे जो क्वेश्चन है मतलब ये नहीं रहना चाहिए कि एक्चुअली मुझे आंसर मिले या नहीं मिले, मुझे कौन बोलेगा, मीन्स कुछ कोई पर्सन आंसर मुझे देगा या नहीं देगा, ओके, ऐसे कुछ चीजें हैं, बट we have to very straightforward to the asking question, okay, inside the classroom and वगैरह। so I was specifically, I may say that it is really a nice conversation with you specifically, okay, and we will discuss much more about your experience, okay, in the latter series, okay, thank you so much about thank you
for having me. Thank you. Namaste.